हाय, वेलकम टू आरोग्य फिजियो टिप्स। आपका आरोग्य फिजियो टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है पार्किंसन एक्सरसाइजेस। पार्किंसन डिजीज में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ट्रेमर्स होता है, जैसे कि बैलेंस इशू होता है, या फिर मसल टाइटनेस हो जाती है, समटाइम्स डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको पार्किंसन में एक्सरसाइजेस रेगुलरली करना बहुत 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 ज़रूरी है। मेक श्योर इफ यू आर पार्किंसन यू एवरी डे एक्सरसाइज। तो आप क्या करें कि एक फिजियोथेरेपिस्ट से अपना एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाएं। तो देर आर मेनी प्रॉब्लम्स विच हैपन्स इन पार्किंसोनिज्म। टुडे वी विल बी एड्रेसिंग अबाउट बैलेंस। हम बैलेंस कैसे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो इफ यू आर अ पार्किंसन पेशेंट, दीज आर द एक्सरसाइजेस फॉर यू. What you should do, okay, while you are exercising, make sure you have something to hold on to when you are exercising. So अगर आप मान लीजिए आप खड़े हो रहे हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि ये पास में है, जिससे कि अगर आप गिरे तो ये साथ में रहे. Second, there should be somebody to see you around, okay? Don't do it alone, because if you fall or something, then there will be a problem. Third, very important point is कि आप अपनी मेडिकेशन ले चुके हो और ट्रेमर्स जब रिड्यूस हुए हो तभी आप ये एक्सरसाइज करें. डोंट डू इट वाइल यू आर इन सिम्टम्स. ओके, सो यू शुड डू दीज एक्सरसाइजेज ओनली आफ्टर योर medications. Okay, fourth, anytime pain comes or you feel instability or you feel you are not comfortable doing these exercises, please don't do them, and you can report that to change these exercises by your physiotherapist. Okay, you can also visit your doctor if the tremors are too much, and you can discuss with him how to reduce the tremors so that you can do these exercises regularly. Again, I am telling these are not the only exercises for Parkinsonism. Parkinsonism में आप सिर्फ और सिर्फ ये exercises नहीं करेंगे, आप दिन डिवाइड करेंगे. एक दिन आप ट्रेमर्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट डे आप मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज करेंगे, थर्ड डे आप मसल स्ट्रेचिंग करेंगे, फोर्थ डे आप बैलेंस ट्रेनिंग करेंगे. तो इसीलिए आप अपनी एक्सरसाइजेस को डिवाइड करिए डे बाय डे के हिसाब से, बट एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे. So today we will be doing balance training for Parkinsonism patient. So the first exercise will be standing stable. Okay, so you can get up from the couch. Make sure the couch is near you so that you can hold on to when you feel unstable. Okay, and try standing straight. Okay, one straight without the tremors for 30 to 40 seconds. When you are comfortable like this, आपको बहुत comfortable लग रहा है ऐसे खड़े होने में, तो पैरों को साथ में ले आइए. ओके, सो ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर. ओके, एंड ऐसे खड़े रहिए 30 to 40 सेकेंड्स तक. आप रिपीट भी कर सकते हैं 3 से 4 बार. जब आप ऐसे भी ठीक से खड़े हो पा रहे हैं, देन यू कैन स्लाइटली क्लोज योर आइज एंड सी वेदर यू डोंट फील अनस्टेबल. ओके, एंड होल्ड दैट पोजिशन फॉर 30 to 40 seconds. So the first exercise is just balancing while you are standing. So next exercise is we have to train the patient, or the patient should train themselves to walk. Okay, so put one leg right in front of your other leg. Just put one leg right in front of your other leg. The hands can be down or can be straight. Okay, and hold this position for 30 to 40 seconds. Make sure you have a couch so that if you feel unstable, you can actually hold on to it. Okay, and repeat this again by bringing the other leg forward. So now bring the other leg forward and hold this position again for 30 to 40 seconds. Next is walking on the straight line. Okay, so you have to start training the patient to walk on the straight line. Again, make sure the couch is next to it so that if the patient feel unstable, they can actually do it. They can hold on to something. Okay, so try to be as slow as possible and go line by line, one straight line. Okay, one after the other, as slow as possible. So next balance exercise is balancing on one foot. Okay, so what you should do is you should start standing on one foot. Okay, so make sure you have a couch to support if you feel unstable, and bring your leg at 90 degree. Okay, hold it there for 30 to 40 seconds. Okay, this is very good actually for tremors also, because there will be weight bearing on the other leg.
Also, it is a good for strengthening. So you can actually do lot of exercises in this position. So one is bending the leg forward. The second one can be bring it back and always alternate it. So then do it with the other leg. आप दूसरे पैरों के साथ भी करिए. तो दूसरे पैर को 90 डिग्री में लाइए. ओके, और अब इस पे सपोर्ट करिए. ओके, एंड 30 to 40 सेकेंड्स होल्ड करिए. ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप पैरों को आगे ले जा सकते हैं. यू कैन ब्रिंग द हिप इनटू फ्लेक्शन. ओके, एंड होल्ड इट देयर फॉर 30 seconds to 40 seconds and relax, and again alternate it. So do it with the other leg as well, and relax and relax. Next is lateral shifting or shifting the weight laterally. तो आप पैरों को साइड पे ले जाइए, abduction में हिप abduction करिए और धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले जाइए और 30 to 40 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करिए. मान लीजिए आप बहुत बॉडी शिफ्ट हो रही है तो आप वापस टो को टैप करिए और धीरे से वापस बिना साइड में बेंड किए उसको ऊपर ले जाइए और होल्ड करिए जितना हो सकता है उतना. सिमिलरली यू डू इट फॉर द अदर लेग. दूसरे पैरों के लिए भी सिमिलर एक्सरसाइज करिए. होल्ड करिए 30 to 40 सेकेंड. जब ब्रेक लेना है तो टो टैप करिए और उसके बाद वापस ऊपर ले जाइए. लैटरल शिफ्टिंग. नेक्स्ट इज शिफ्टिंग योर वेट एट द बैक. सो टेक योर लेग एट द बैक. पैरों को पीछे ले जाइए और एक पैर से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए. होल्ड करिए 30 से 40 सेकेंड और फिर धीरे धीरे रिलैक्स करिए. यही सेम चीज़ आप दूसरे पैर के लिए भी करेंगे. सो डू इट ऑल्टरनेटिवली. फर्स्ट डू इट ऑन द राइट साइड and then do it on the left side and hold it for 30-40 seconds. Now you can even bend your knee and at the back and hold it. So like how we did it on the front, bend it and hold it for 30 to 40 seconds and relax, and do it on the other side as well. Bend the knee and hold it. Always make sure that the couch is next to you so that you can get supported. हमेशा याद रखिए कि काउच बगल में होना चाहिए जिससे कि जब भी आप अनस्टेबल फील करें आप अच्छे से उसको पकड़ लें और गिरे नहीं. नेक्स्ट इज यू कैन टेक वन स्ट्रेट लाइन और साइड वॉक कर सकते हैं. ओके, तो वॉक ऑन द साइड बाय शिफ्टिंग योर वेट लैटरली. ओके, slowly make sure you are not unstable. धीरे आप वेट को लैटरली ले जाइए. ओके, एंड देन डू इट ऑन द अदर साइड. तो आप दूसरे पैर पे वेट शिफ्ट करिए और दूसरा लेग वापस लाइए. सो साइड वॉक. ओके, जब आपको ये ईजी हो जाता है तो आप ये सेम एक्सरसाइज वेट्स के साथ कर सकते हैं. तो आपकी स्ट्रेंथनिंग भी होगी. या लूप बैंड यूज़ कर सकते हैं. तो हम लूप बैंड और वेट्स का लिंक एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. सो नेक्स्ट इज़ वॉल लीन. दूसरी एक्सरसाइज वॉल लीन है. ये भी बैलेंस के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है. तो आप वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाइए. आप थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन यू एंड द वॉल बॉडी. ओके, सो दैट योर बटक्स आर नॉट टचिंग द वॉल. ओके, और धीरे धीरे आप पीछे जाइए और लीन करिए और वापस आइए. सो इट शुड बी अ पेंडुलर मूवमेंट जहाँ पे आप पीछे जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे आगे आ जा रहे हैं. जब आप पीछे जा रहे हैं तो मेक श्योर यू आर रेजिंग योर टोज. ओके, सो योर टोज आर कमिंग अप and then when you come forward they come down. Again, when you go back, your toes are coming up, your buttocks are touching the wall, and when you are coming forward, buttocks are coming down. So make sure you do wall lean. How many times you can do it? You can definitely do it 20 to 30 times. So next is wall squat. तो वॉल स्क्वाट इसलिए करना है बिकॉज द बॉडी इज कमिंग फॉरवर्ड इन पार्किंसन में आपका शोल्डर, आपका हेड सब आगे आता है. तो वॉल के अगेंस्ट खड़े रहिए, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए. ओके, टेक योर हैंड्स अगेंस्ट द वॉल and slowly bring your feet apart and slowly go down as much as possible. Make sure your feet is slightly away from the wall. Okay, and go and hold this pose. Hold it for 30 to 40 seconds and slowly you should get up. You can repeat it 5 to 10 times. आप make sure करिए your feet is slightly apart from the wall. So feet is not touching the
wall. If you understand the feet distance between the wall and the feet is there is slight distance, so you can slowly come up and do this. So next is training the patient for backward walking. तो backward walking के लिए अगर ट्रेन होना है तो धीरे धीरे आप पैर को पीछे ले जाइए, जैसे हमने वॉल लीन किया था, पीछे वेट डालिए, फिर आगे आइए एंड देन टेक द अदर लेग एंड ब्रिंग इट बैक. तो पीछे ले जाइए पैरों को, उस पर वेट डालिए, लीन होइए, आगे आइए, पीछे ले जाइए, हल्का लीन होइए, आगे आइए. जब आप कंफर्टेबल हैं ये करने में, व्हेन यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल एंड यू डोंट फील शेकी नॉर यू फील इम्बैलेंस्ड, इज़ व्हेन यू कैन स्टार्ट डूइंग बैकवर्ड वॉकिंग. जब आपको एकदम स्टेबिलिटी लगती है तो आप धीरे धीरे बैकवर्ड वॉकिंग चालू करिए. इसमें पैरों को वन आफ्टर द अदर, वन स्ट्रेट लाइन में ले जाने की कोशिश करना है. सो वी हैव टू ट्राई टेकिंग वन लेग at a time, one leg at a time, as slow as possible. You can take 10 steps backwards and then come forward again in one straight line. So you are doing 2 exercises at a time, and then again go backward. Okay, so you can go backward in trying to do it in one straight line. सो नेक्स्ट इज स्टेपिंग एक्सरसाइज. स्टेपिंग एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक पैर को स्टेपर के ऊपर रखना है और पीछे ले जाना है, दैट्स ऑल. सो आगे थोड़ा सा वेट डालिए, लीन करिए, पीछे ले जाइए. ओके, आप चाहिए तो ये सीढ़ियों में भी कर सकते हैं या आपके घर में कोई प्लेटफॉर्म है उस पर कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट doing this. So you have to just take one leg in front, put weight on that leg and bring it back. Put weight in front, put in one leg and make sure you have something to hold on to the side. So if you feel unstable, you can always hold on to it. जब आप इससे comfortable हैं, जब you are absolutely comfortable और आपको you are not feeling imbalanced, तो आप actually stepping चालू कर सकते हैं. So you can keep one leg in front, hold something and try to step up. Now keep holding that, leg down, again up, leg down, up, leg down. अगर आपको हाइट ज़्यादा लग रही है तो आप अपनी हाइट के हिसाब से छोटा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, और यू कैन यूज़ द स्टेयर्स फॉर दिस एक्सरसाइज. Then you can start doing lean exercise in all the directions. So you suddenly put the step in the front, hold it there for 3 seconds, bring it back. Suddenly side में ले जाइए और फिर hold it there for 3 seconds and so sudden direction में लेके जाइए और 3 seconds hold करिए, वापस लाइए. Again hold it anywhere. Okay. So make sure you keep changing the direction and every time there is another direction and you try to hold that pose for 3 to 5 seconds and bring it back. Okay. So next is figure of 8 walking. आप 8 के फिगर में वॉक करेंगे. इसके लिए अभी हमने डम्बल्स यूज़ किए, आप कोन्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ करके 2 मीटर अपार्ट, कीप देम 2 मीटर्स अपार्ट. ओके, एंड देन यू कैन वॉक एज अ फिगर ऑफ 8. ओके, सो यू मेक दैट 8. आप 8 कैसे बनता है उस तरीके से आप वॉक करेंगे. इससे क्या हो रहा है, आप सडन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो इसका आपका बैलेंस इम्प्रूव होगा. तो पहले आप धीरे धीरे वॉक कर सकते हैं एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन वॉक स्लाइट फास्टर. ओके, सो फिगर ऑफ 8 वॉकिंग. हाउ मेनी टाइम्स? अराउंड 10 to 15 times you can do it. सो नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग वाइल यू आर वॉकिंग. तो आपको कुछ और काम भी करते रहना है जब आप काम चल रहे हैं. तो जैसे कि यहाँ पे उषा, शी इज़ होल्डिंग समथिंग एंड वॉकिंग. ओके, तो आप कुछ भी होल्ड करके वॉक कर सकते हैं एंड कीप गोइंग ऑन साइड टू साइड. यू कैन कीप टॉकिंग ऑन द फोन एंड कीप वॉकिंग. ओके, so that you are talking as well as walking together. You can try to in your mentally you can try to solve few problems and you can think of thinking something else and then walking stably, as stable as possible.
तो कुछ सोचते रहिए, चाहे तो वो थोड़ा सा मतलब गुड़ भाग कर लीजिए, आपका मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, दिमाग में बात करिए और चलते चलते रहिए। अगर आपको पार्किंसनिज्म है तो आप बैलेंस के लिए ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो उषा ने आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट की है। इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है पार्किंसनिज्म के लिए, जैसे कि चेस्ट ओपनर एक्सरसाइज जिसमें आप चेस्ट ओपन करते हैं। स्विमिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर पार्किंसनिज्म। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग, इसके अलावा स्ट्रेचिंग। सो every day you should do one training. So this was balance training. I think we can make some more videos for Parkinsonism. तो हम और videos भी बनाएंगे Parkinsonism के लिए, बट अगर आपको बैलेंस इश्यूज है तो ये एक्सरसाइजेस करना है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल आरोग्य फिजियो टिप्स एंड विटनेस योर फिटनेस विद अस।